So, hello and welcome back to my channel Average Aspirant. For those who are new to this channel, my name is Aditya Arvind Pandey and I've appeared for UPSC CSE Interview 2025 and I've appeared for Forest Mains 2. I've made a Telegram channel, the link of which is in the description box, wherein I've uploaded my ethics notes and some sample copies of my essay, and I'll be uploading further notes related to mains. Okay, so by mid Feb, I'll be uploading all the notes related to mains over there. So coming back to the agenda of today's video, so it is, you can clearly see that approximately 124 days are left for the prelims examination, and I know I've been in the situation. ठीक है, जैन खत्म होने वाला है, एंजाइटी इज ऑन पीक, रिवीजन इज अबाउट टू स्टार्ट, यू आर गोइंग टू सॉल्व PYQs, ठीक है, यू आर गेटिंग लो scores in mock test, every other things what which you are going to face, I've already faced that. Okay, so I'll be delving into such things and I'll be fine. And last but not the least, I'll tell you what was my final strategy for the prelims, since I've failed prelims 5 times and I could clear forest cutoff in my sixth attempt. ठीक है, so I'll be delving कि what mistakes I did, उसका एक वीडियो तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, but this video per se will be on what was my change in the strategy that helped me clear forest cutoff. ठीक है, so we'll be talking about some PYQs also and we'll see कि how I analyzed PYQ. ठीक है, तो हम 2024 का पेपर देखेंगे. ठीक है, ये पेपर मैंने भी दिया था. आई गॉट अप्रोक्सीमेटली 92 मार्क्स एंड दैट ईयर कट ऑफ वाज 87. ठीक है, आई कुडंट क्लियर फॉरेस्ट कट ऑफ दैट ईयर. So we'll be delving into how to analyze PYQ, not how to solve, but how to analyze PYQ. ठीक है, so let's begin. Coming back to the agenda of the today's video. So yeah, 124 days are left for prelims examination. Your prelims examination is supposed to be held on 24th of May. So what is going to be the four month scenario for you guys? ठीक है, अभी से लेके 4 मंथ आपके लिए क्या क्या होने वाले हैं. सो ये तो आपको पता ही होगा कि स्टार्टिंग का रिवीजन आपको बहुत बार करना होगा. ठीक है, करंट अफेयर्स का आपको फोमो हो रहा होगा कि मैं करंट अफेयर्स कहाँ से पढूं, अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है. PT 365 पढूं या कोई और सोर्स ले लूं. सो ऑल दोज थिंग्स विल बी प्लेइंग विथ योर माइंड. एंड अगर आपने टेस्ट सीरीज देना चालू कर दिया या नहीं भी दिए तो आपके टेस्ट में अभी लो स्कोर आ रहे होंगे. ठीक है, और CSAT की प्रिपरेशन आपने चालू की है कि नहीं, ठीक है, या कब करनी चाहिए, दैट ऑल्सो आई बी टॉकिंग अबाउट. ठीक है, सो कॉमन मिस्टेक्स दैट पीपल डू. ठीक है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ मेक और ब्रेक 4 मंथ फॉर यू, फॉर दोज हु हैव बीन प्रिपेयरिंग सीरियसली फॉर दीज 4 मंथ्स. ठीक है, यू कैन नॉट टेक, फॉर दोज हु हैव बीन प्रिपेयरिंग सीरियसली फॉर दिस 8 मंथ्स कैन नॉट टेक दिस 4 मंथ्स वेरी लाइटली. ठीक है, सो कॉमन मिस्टेक्स दैट पीपल टेंड टू डू इन दीज 4 मंथ्स इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ सोर्सेज फॉर स्टैटिक. ठीक है, बिलीव मी दैट्स नॉट गोना हेल्प यू. ठीक है, the only strategy that works for static is to study less and revise more. So study less by studying less, I mean that you need to keep your sources very limited. ठीक है, you need not to multiply your sources. So that's the common mistake that aspirants delve into. ठीक है, so overemphasis on current affairs. So the strategy that I adopted was, I gave 30% of my attention span to current affairs and remaining 70% to the static. So please don't be the person who is emphasizing more on current affairs, because I'll be delving into कि you will end up in a very bad situation अगर आप current affairs को ज्यादा पढ़ रहे हो, static को बहुत कम पढ़ के जा रहे हो. ठीक है, so prioritize static first and then current affairs. ठीक है, and अगर आपने PYQ एनालिसिस अभी नहीं की है, ठीक है, वो आपको ये वीडियो में बताने भी वाला हूँ आपको किस तरीके से करनी है. तो अब एक एक कॉमन मिस्टेक यही होती है कि लोग PYQ एनालिसिस नहीं करके जाते हैं और उनको लगता है कि वो सिर्फ पढ़ के चले जाएंगे, दे विल गेट अ हैंग ऑफ दिस एग्जामिनेशन, एंड दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज PYQs आर योर ट्रस्टेड सोर्स. ठीक है, यू गेट टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द पेपर, यू गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जामिनर इज थिंकिंग एंड विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड टू व्हाट एक्सटेंट दैट यू हैव टू स्टडी. ठीक है, सो please do not be the aspirant who is ignoring PYQ right now, because last 4 months are left and you need to do your PYQ seriously. एंड लीविंग CSAT फॉर द एंड, प्लीज डोंट बी द एस्पिरेंट कि जो अपने CSAT को एकदम एंड में रख देगा, बिकॉज द सिचुएशन इन एट द एंड इज गोइंग टू बी वेरी ग्रिम. ठीक है, वेर इन यू हैव टू रिवाइज योर स्टैटिक, यू हैव टू रिवाइज योर करंट अफेयर्स, यू हैव टू रिवाइज योर यू हैव टू, मतलब टेस्ट सीरीज भी आपको देनी है, PYQs भी देने, एंड यू एंड अप losing your time on CSAT. आप CSAT पढ़ के नहीं जाते और आपको लगता है कि you have to just score 66.5 marks in CSAT, and believe me, that's not going to happen considering the level of toughness that UPSC has been asking in CSAT paper. So last common mistake that aspirant tend to do is crying over low score. So this is a disclaimer, like I got 51 marks in Vision Abhyas and I could clear my forest cutoff in 2025 prelims. I got approximately 104 to 112 marks. So please do not cry over low scores in mock test, because they are not going to help you. Crying over low scores does not add any value to your प्रीलियम स्कोर. ठीक है, तो मॉक में कमी आने वाले हैं, क्योंकि अगर आप करंट सिचुएशन देखोगे तो मेरे हिसाब से आपने एक बार ही पढ़ाई कर रखी होगी. ठीक है, सो व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज एटलीस्ट यू हैव कवर्ड योर सिलेबस वन टाइम. ठीक है, अगर आपने एक बार भी सिलेबस को नहीं पढ़ा है, देन प्लीज पॉज द वीडियो.
यू कैन लीव द वीडियो राइट नाउ बिकॉज आई कैन नॉट हेल्प यू। अगर आपने एक बार भी सिलेबस नहीं पढ़ा है, सो यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, सो दिस वीडियो इज फॉर दोज एस्पिरेंट्स हु हैव एटलीस्ट कवर्ड द सिलेबस वन टाइम। ठीक है, तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि अगर आपने सिलेबस एक बार पढ़ा है और अभी आप जाके फुल लेंथ का मॉक दे दोगे, तो ऐसा तो नहीं होगा आपके 150 नंबर आ जाएंगे उसमें। सीधी सी बात है, कोई भी टेस्ट को आपको अटेम्प्ट करने के लिए सही तरीके से यू शुड हैव रिवाइज द सब्जेक्ट 3 or 4 टाइम्स। ठीक है, सो बिलीव मी, क्राइंग ओवर लो स्कोर्स इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, यू विल गेट लो स्कोर राइट नाउ। ठीक है, बट सब कुछ रिलेटिव है, सब कुछ मतलब कंपैरेटिव है, सबके लो स्कोर आ रहे हैं, सो डोंट जस्ट क्राई ओवर लो स्कोर, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनी हाउ। So coming back to what is my expectation is that you should have completed at least one time your syllabus for prelims. ठीक है, because that is going to help you in this 4 months. अगर आपने वो भी नहीं किया then the preparation is very bad right now. So I cannot help you, even only God can help you right now. ठीक है, and for those aspirants who are very serious about mains, they can cover their mains till Feb mid. ठीक है, I did the same in my last attempt. I was doing mains till my Feb mid. एंड उसके बाद ही मैंने पूरा फुल फ्लेजेड मैंने Jan 1 को एक अभ्यास का मॉक अनुभव का मॉक दे दिया था। वहां से मेरे को पता चला था कि सिचुएशन इज डिसेंट, सो आई कुड कवर माई मेंस टिल फेब मिड। उसके बाद आई केम बैक शिफ्टेड टू माई मेंस प्रिपरेशन। सो इफ यू आर दैट एस्पिरेंट्स हु इज स्टिल डूइंग मेंस एंड हु इज वरीड कि मुझे मेंस कब तक करना चाहिए, सो बिलीव मी, यू कैन कंप्लीट योर मेन सिलेबस टिल फेब मिड एंड जस्ट गो ऑल इन एंड ट्राई टू कवर मैक्सिमम सिलेबस यू कैन। ठीक है, सो दिस टॉक्स अबाउट जनरल माइंडसेट दैट यू शुड हैव इन द लास्ट 4 मंथ्स, क्योंकि जो 8 महीने चले गए वो अलग हैं, जो ये 4 महीने बचे हैं वो बहुत अलग है, क्योंकि इनसे एग्जाम निकलने वाला है। ठीक है, एग्जाम के पहले आप जितना पढ़ के जाते हो आपको वही ज्यादा याद रहता है। सो बिलीव मी, यू शुड लाइक शिफ्ट सम गेयर्स, यू शुड ब्रिंग सम चेंजेस इन योर माइंडसेट। ठीक है, सो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट चेंज व्हाट आई डिड इन द माय लास्ट अटेम्प्ट इज ओवरकमिंग द मेंटल बैरियर। इसका मतलब क्या है कि आपने ये कोट बहुत सुना होगा कि द ओनली थिंग दैट इज स्टॉपिंग यू to become what you want to is you standing in front of the mirror telling yourself that you cannot do it. ठीक है, अगर आप खुद ही अपने आप को बोल रहे हो कि आई कैन नॉट डू इट, देन इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सो जस्ट ब्रेक दैट मेंटल बैरियर कि मेरे से ये साल एग्जाम नहीं निकलने वाला है। अगर आप यही सोच के चल रहे हो कि मेरा प्री निकल जाएगा, मेंस नहीं होगा, मेंस निकल जाएगा तो इंटरव्यू नहीं होगा, तो आपका एग्जाम कभी नहीं होगा। ठीक है, सो यू नीड टू ब्रेक दैट मेंटल बैरियर, यू नीड टू टेल योर सेल्फ दैट देर इज नो वन स्टैंडिंग बिटवीन मी एंड द पर्सन स्टैंडिंग इन द मिरर इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक है, आई कैन अचीव वॉट आई थिंक। सो जस्ट ब्रेक दैट मेंटल बैरियर, do the whatever you study, do it in a smart way। ठीक है, do not study haphazardly। ठीक है, do not read every material you find in the market। ठीक है, do a smart analysis of things, do study only those things which can add value to your prelims examination, जहां से आपके नंबर बढ़ सकते हैं। ठीक है, and last but not the least, we believe in the principle of निष्काम कर्मा। ठीक है, do not get attached to any results। ठीक है, they are very we all know that chances of selections are very less। ठीक है, so do not get attached to any result, your job is to keep on studying, so please keep on studying, do not get worried about result। So the last and last but not the least, what was the strategy that I adopted so I could materialize a fruitful result in the prelims examination? So I couldn't clear again prelims in my first 5 attempts। ठीक है, but in the last attempt I could score between 104 to 112 and I could manage to clear the forest cutoff also। So first and the foremost thing that I changed was my mindset, जिसके बारे में मैंने आपको बताया यहाँ पे, overcoming the mental barrier। और वही माइंडसेट से रिलेटेड एक चीज मैंने और अपने दिमाग में भरी की, यू डू नॉट डायरेक्टली नो द आंसर you do not directly know the answer of 50% of question in the examination hall। ठीक है, you just need to keep that in mind, क्योंकि हम इतना पढ़ के जाते हैं और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे से एग्जाम में सारे क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, बट बिलीव मी, डायरेक्टली तो आपको 50% के ऊपर क्वेश्चन के आंसर नहीं आएंगे। व्हाट आई मीन डायरेक्टली, उसमें आपको 2 ऑप्शन के आंसर पता होंगे और आप उसमें कंफ्यूज हो। ठीक है, आपको कुछ चीजें पता होंगी स्टेटमेंट में और कुछ चीजें नहीं पता होंगी। सो डायरेक्टली यू डू नॉट नो आंसर ऑफ 50% ऑफ द क्वेश्चन, नो मैटर हाउ हार्ड यू स्टडी, दैट इज द ट्रूथ, यू नीड टू कीप दैट इन माइंड। ठीक है, जस्ट डू नॉट अपीयर इन द एग्जामिनेशन थिंकिंग दैट आई एम गोइंग टू नो आंसर ऑफ 190 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 being asked। So that is not going to happen, you just know approximately 35 to 40 questions, that too you know 25 questions directly जो मैंने पढ़ा और उसको मार्क कर दिया। ठीक है, सो यू जस्ट नीड टू कीप दैट इन माइंड कि 50% ऑफ द क्वेश्चन मेरे से एग्जाम में डायरेक्टली नहीं सॉल्व होने वाले हैं, मुझे कुछ ना कुछ तिकड़म लगाना पड़ेगा, वहां पे मैंने क्या पढ़ा है मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, so just keep that in mind। I'm again trying and repeating the same thing, you will not know answers of 50% of the question in examination hall directly। ठीक है, you might know everything, you might know a lot of things that are being asked, but directly उसका आंसर नहीं आ रहा है। so just keep that in mind, so you won't struggle। ठीक है, आपके दिमाग में वो चीज भरी हुई है। ठीक है, फिर ये एक टेलीग्राम चैनल पे मैंने देखा था कि आई डोंट डू PYQs बट आई एम द PYQ। ठीक है, जो दोज हु नो कि किसने डाला है, जस्ट ड्रॉप डाउन इन द कमेंट। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट
कि आई डोंट डू पीवाईक्यू बट आई एम द पीवाईक्यू। ठीक है, आपको पीवाईक्यू एनालिसिस इस तरीके से करनी है कि आप ही पीवाईक्यू बन जाओ। सो जनरल थिंग्स, अब व्हाट डू एक्सपेक्ट फ्रॉम पीवाईक्यू एनालिसिस, पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे करनी है वो भी आपको शॉर्ट में बता दूंगा अभी मैं। बहुत सारे टेलीग्राम पे मेरे से पूछ रहे थे। बाकी पीवाईक्यू एनालिसिस से आपको मिलता क्या है, तो दिस वी आर डिस्कसिंग हियर। सो यूपीएससी वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है, ये जनरल चीज आपको पीवाईक्यू से मिल जाएगी कि पीवाईक्यू एनालिसिस से आपको ये पता चलता है कि यूपीएससी किस तरीके से सवाल पूछने वाला है, वो किस तरीके से सोच रहा है। ठीक है, तो बाय बाय एनालाइजिंग पीवाईक्यूज यू कैन डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ ईच टॉपिक। ठीक है, किस सिलेबस किस सब्जेक्ट को कितने हद तक पढ़ना है वो भी आपको पीवाईक्यू से पता चल जाएगा। ठीक है, इमर्जिंग एंड डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स, ठीक है, कौन से टॉपिक्स ज्यादा पूछे जा रहे हैं। कई कई लोग बोलते थे कि 2018 में मेडिवल हिस्ट्री कम पूछी जाती है, अब जो 2019 का पेपर दिया तो वहां पे पता चला कि भाई मेडिवल हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो इमर्जिंग एंड डिक्लाइनिंग टॉपिक्स वो भी आपको पीवाईक्यू एनालिसिस से करके मिलेंगे। लैंग्वेज ऑफ यूपीएससी, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, एक क्वेश्चन था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, लिमिटिंग द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, और ज्योग्राफी से भी कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ यूपीएससी, किस तरीके के सवाल वो पूछ रहा है और किस वो सवाल में किस तरीके की इंग्लिश वो फ्रेम करके पूछ रहे हैं। ठीक है, सो यू नीड टू, जहां से आपको पता चलेगा कि आपकी इंस्टिंक्ट ट्रेनिंग हो जाएगी, वहां से आप अपने इंस्टिंक्ट को ट्रेन करोगे कि ये सवाल मैंने पीवाईक्यू में देखा था और ये एलिमिनेशन टेक्निक मेरी लगी थी, तो वही मैं एग्जाम में भी उसको इम्प्लाई कर सकूं। ठीक है, सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम पीवाईक्यू इज यूपीएससी's वे ऑफ थिंकिंग, डिफाइनिंग द बाउंड्रीज ऑफ ईच टॉपिक, इमर्जिंग वर्सेस डिक्लाइनिंग टॉपिक्स, लैंग्वेज ऑफ यूपीएससी एंड इंस्टिंक्ट, आप अपने इंस्टिंक्ट को ट्रेन करते हो और एक एलिमिनेशन टेक्निक अडॉप्ट कर लेते हो। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस some PYQs wherein I am discussing my 2024 paper. So let's begin with the fifth question. ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। सो हियर वी डू नॉट वांट टू नो द आंसर। ठीक है, आई डोंट केयर अबाउट आंसर बट वी वांट टू नो कि हाउ डू वी डू द एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। So this question you will see the question is from mapping. The question is saying that which of the following countries are well known as the two largest cocoa producers. ठीक है, the answer of this question I knew in the examination hall was Ghana and Cote d'Ivoire. I don't know how to pronounce it basically. So this was the answer. But यहाँ पे एक ऑप्शन देखोगे तो that says बोट्सवाना। तो ज्योग्राफी में मैपिंग जो भी करता है देन मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, द सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2025। बोट्सवाना इज द मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड और समथिंग। सो इफ a person who was very smart enough to do it could have grabbed the opportunity from here itself. But yeah, this is how you do it. I know this, ये बहुत ही it can be a fluke also। ठीक है, बहुत जन इसे नहीं भी करके जाएंगे, बट ऐसे ही पीवाईक्यू एनालिसिस होती है। आपको क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन भैया कहाँ से आ रहा है। ज्योग्राफी के आप क्वेश्चन देखोगे मेनली तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, वर्ड मैपिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, वर्ड ज्योग्राफी की मैपिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये इंडियन मैपिंग है, यहाँ भी देखोगे एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू गेन फ्रॉम हियर। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चंस आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, क्वेश्चंस आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम वर्ड मैपिंग। सो ये दोनों, और यू कीप ऑन स्टडिंग 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी। ठीक है, दैट इज अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी बिकॉज 11th और 12th की एनसीईआरटी और जीसी लियोन का पार्ट बी एंड वर्ड मैपिंग के बाहर से ज्योग्राफी की वेरी रेयर क्वेश्चन आने वाले हैं। एक आधा क्वेश्चन आ जाएंगे जो आपसे नहीं होंगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, यू वोंट फाइंड एनीवेयर व्हेन यू स्टडी ज्योग्राफी, बट दैट इज अ करंट अफेयर क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको नहीं आ रहा तो किसी को भी नहीं आएगा, बट व्हाट यू सी हियर इज क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। सो दिस इज द एनालिसिस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड द क्वेश्चंस आर नॉट वेरी टफ आल्सो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द डेप्थ टिल विच यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देखोगे दिस इज द बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, इन जून 21 which of on June 21 year which of the following latitudes experience sunlight more than 12 hours। तो I mean again the answer is not important, आंसर मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, बट दिस इज अ रिपीटेड थिंग। ये एक बार नहीं पूछा है, यूपीएससी ने 2-3 बार पूछ चुकी है ये टाइप के सवाल। ठीक है, अब कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन with reference to the Himalayan river joining Ganga downstream of Prayagraj west to east, which one of the following is correct। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी पूछ रहा है बेसिकली। ठीक है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। तो दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम मैपिंग, बट अगर आप पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हो देन यू जस्ट डोंट ये आपको पता चलेगा कि दीज आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। आपको खुद से क्या करना है, यू कैन जस्ट गूगल एंड सी व्हाट आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। यू विल फाइंड दैट यमुना, सोन, दामोदर। ठीक है, अगेन we are just discussing a sample set of questions, you need to implement them while you are doing the PYQ। So again coming back to the ninth question, तो ये कह रहा है कि these type of questions are very tough, जिनका ट्रेंड 2024 से आपको दिख जाएगा कि 3 types of मैच द फॉलोइंग, 3 कॉलम में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाटरफॉल दिया, रीजन दिया, रिवर दिया है। सो धुआंधार वाटरफॉल जबलपुर,
मालवा रीजन में नहीं है मेरे हिसाब से, और नर्मदा, हाँ नर्मदा से, नर्मदा रिवर के ऊपर होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। हुंडरू वाटरफॉल रांची में है, झारखंड, छोटा नागपुर प्लेटू, सुवर्णरेखा रिवर पे सही है। जेरोक्सवा वाटरफॉल वेस्टर्न घाट, नेत्रावती रिवर पे नहीं है, श्रावती रिवर पे है। अब यहाँ से आपको पता चलना चाहिए कि नर्मदा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, लार्जेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। ये मैंने सब गूगल करके लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आओगे माउंटेन्स के बारे में देखोगे तो अगेन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे पूछने वाली है यूपीएससी। सो दिस इज द टाइप ऑफ पीवाईक्यू एनालिसिस आई एम टॉकिंग अबाउट। विल नॉट गो इनटू द फर्दर डेप्थ ऑफ पीवाईक्यूज बिकॉज दिस इज नॉट अ पीवाईक्यू सेशन बेसिकली, बट यू कैन अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि कैसे आपको करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने और एक चीज गूगल करके लिख दी वाटरफॉल से कि वन ऑफ अदर इंपॉर्टेंट वाटरफॉल, गोवा में एक इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, मेघालय में इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है। इफ यू आर watching the video till now, then please drop down in the comments what are the very known waterfalls in Goa and Meghalaya also. So yeah, so this type of PYQ analysis you need to do for yourself, ठीक है। No one will teach you, no one is going to do that much of spoon feeding for you, ठीक है। बेसिक चीजें ये आपको करनी पड़ेंगी। So here we discussed कि first thing we discussed कि you keep that in mind कि you do not directly know the answers of 50% of questions that have been asked in examination, ठीक। आपने पीवाईक्यू देख ली, पीवाईक्यू के मतलब देख लिया कि पीवाईक्यू से आपको क्या क्या समझ आ रहा है, ठीक है। अब कमिंग बैक to the third thing that I kept in mind in my sixth attempt was to prioritize static over current affairs, ठीक है। Very simple, मैं I used to give 30% of my time to current affairs and 70% of my time to static, because current affairs में आप देखोगे it's a ocean of uncertainty, ठीक। और static में full certainty है कि 40 से 50 सवाल आने वाले हैं जो मैंने पढ़े हुए हैं, it is my forte and I am not going to do it wrong, ठीक है। I just keep that in mind कि I need to do 80 to 85% of the questions right when they are coming from static. So I always prioritize my static well, एंड करंट अफेयर्स आई थॉट वाज एन ओशन ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। मैंने बहुत जनों को, और मैंने भी एक दो अटेम्प्ट में करंट अफेयर्स में ज्यादा प्रायोरिटाइज किया था, एंड आई कुड रियलाइज दैट दे आर नॉट एडिंग एनी एडिशनल मार्क्स टू माय प्रीलिम स्कोर, ठीक है। बट व्हेन आई प्रायोरिटाइज माय स्टैटिक वेल आई कुड सी दैट आई कुड क्लियर द फॉरेस्ट कट ऑफ वेल। सो दिस इज अ जनरल लर्निंग दैट आई एम ट्राइंग टू से pass on to you guys कि just prioritize your static more than current affairs. I don't mean to say that कि you need not to do current affairs, you need to leave current affairs entirely, that is not the case, but प्रायोरिटाइज योर स्टैटिक मोर देन करंट अफेयर्स, ठीक है। डोंट बी दैट पर्सन जो सुबह से लेकर शाम तक 6 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ रहा है और शाम को स्टैटिक पढ़ रहा है 3 घंटे, ऐसे तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है। तो जो चीजों से आपको हाई रिटर्न मिलने वाला है, जिसका आरओआई ज्यादा है, आप उसको ज्यादा करोगे रेदर देन इनके क्वेश्चन भी। मेरे हिसाब से करंट अफेयर्स इतना वास्ट है कि आपको क्या पूछने शायद आता ना हो, 3 ऑप्शन में से 2 ना आता हो, एक आते हो, ऐसे भी हो सकता है। तो कोई उसमें सर्टेनिटी नहीं है और कुछ भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है। स्टैटिक का अपने को पता है कि पार्लियामेंट से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और चार्टर एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट से एक क्वेश्चन आने वाला है। तो बहुत सारी चीजें आप पीवाईक्यू में एनालाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत सर्टेन है, यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। और यहाँ से ओशन ऑफ अनसर्टेनिटी में मेरे को पैर नहीं रखना था, मैं तो स्टैटिक करके गया था बहुत अच्छे से और मेरा फॉरेस्ट कट ऑफ निकल गया था लास्ट टाइम में। सो दैट बोर मी अ वेरी फ्रूटफुल रिजल्ट। एंड मॉक टेस्ट, ठीक है, दिस इज द वेरी क्रूशियल थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ मॉक टेस्ट, ठीक है। आप मॉक टेस्ट का पर्पस जानिए कि मॉक टेस्ट का पर्पस क्या है। फॉर मी दैट इट इज अ वेरी जनरल थिंग, ठीक है। मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ कि फॉर मी मॉक टेस्ट वॉज टू प्रैक्टिस, जस्ट फॉर प्रैक्टिसिंग। आई केप्ट द पर्पस ऑफ मॉक टेस्ट टू जस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। मेरे को अपना पेपर 1 hour 45 minutes में खत्म करना था, कंसिडरिंग कि मैं 10 से 15 मिनट ओएमआर भरने में टाइम लगाऊंगा और सिग्नेचर और रोल नंबर भरने में टाइम लगाऊंगा, ठीक है। सो मैं अपना हर टेस्ट फुल लेंथ देता था, मैं ज्यादातर फुल लेंथ ही दिए थे मैंने। आई यूज्ड टू प्रैक्टिस देम इन 1 hour 45 minutes, ठीक है। एंड आई हैड अ हैबिट in the earlier attempts that I used to grab unnecessary information from the mock test also, which again could not add any fruitful result to my prelims score, ठीक है। So in my sixth attempt I left that habit of grabbing any irrelevant information from the test series, क्योंकि ऑलरेडी मैं करंट अफेयर से स्टैटिक पढ़ रहा था। सो I relied on my current affairs and static source, and mock test को मैं ऐसा कोई नॉलेज के लिए नहीं लेता था, ठीक है। सो डू नॉट ग्रैब any irrelevant knowledge from mock test and focus on understanding your mistakes and तुक्का, ठीक है। तुक्का जानना बहुत जरूरी है कि you need to know your strength and weak। आपको अपनी SWOT एनालिसिस करनी पड़ेगी, आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर 20 क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर रहा हूँ जिसमें 2 ऑप्शन में गड़बड़ है और मेरे उसमें से 12 गलत हो रहे हैं और 8 सही हो रहे हैं, तो कुछ दिक्कत है, ठीक है। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल, माई रिविजन इज नॉट वेरी राइट, ठीक है। आई एम नॉट एबल टू गेट दोस क्वेश्चंस राइट। बट अगर आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और जहां पे आपके 12 सही हैं और 8 गलत हैं, 6 गलत हैं और आप 2 छोड़ भी दे रहे हो, then you are on the right track. You need to increase the probability of getting those questions right which you don't know. So that happens by practicing more and more mocks. That happens by giving more full length test. ठीक है। So that happens by understanding your own mistake. That happens by understanding कैसे आपके तुक्के सही हो रहे हैं. So that was the purpose of mock test for me.
ठीक है, to practice those tests in 1 hour 45 minutes, कि to do not grab any irrelevant knowledge and focus on understanding my mistakes and तुक्का. ठीक है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि बिल्ड योर ओन स्ट्रैटेजी. ठीक है, आप इतने इतनी तैयारी कर रहे हो, इट्स बीन लाइक मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स और रिपीटर्स आल्सो एंड दोज हु आर अटेम्प्टिंग विद फॉर द फर्स्ट टाइम आल्सो, आप इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो, देन यू नीड टू नो योरसेल्फ कि हाउ आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट सच टाइप ऑफ पेपर. ठीक है, अगर 2023 के टाइप का पेपर आ रहा है, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ अटेम्प्टिंग 95 क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू गेट रॉन्ग. ठीक है, ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री जब नया नया आया था, वो आप कैसे सही कर पाओगे विदाउट नोइंग कि उसको कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, बट अगर क्वेश्चन कुछ इजी तरीके का आ रहा है एंड यू हैव टू क्लियर फॉरेस्ट कट ऑफ, देन यू नीड टू कीप इन माइंड दैट यू नीड टू अटेम्प्ट 95 क्वेश्चंस. दैट इज वेरी श्योर. उसके बिना आपको 120 नंबर आने नहीं वाले, 110 नंबर आने नहीं वाले. सो किस तरीके का पेपर आने वाला है और किस तरीके की आपकी स्ट्रेटेजी होने वाली है उस पेपर को लेकर, ये आपको खुद ही जानना पड़ेगा. ठीक है, सो बिल्ड योर ओन स्ट्रेटेजी कि कहाँ मुझे कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कहाँ मुझे ज्यादा क्वेश्चन करने पड़े. दिस अगेन विल, no mentor is going to tell you. There is no spoon feeding for this, and you have to realize it for yourself. And yeah, so that's it. So these were the, I'll again revise it for you. Key final strategy, final mindset that I changed in my sixth attempt was overcoming the mental barrier that no one can tell me what I'm supposed to do. ठीक है, it's me standing in front of my mirror and I'm telling to myself. No one else is going to do that for me. You did, or understanding that 50% of the questions I cannot solve directly, so I need to do some तिगड़म. तो उसके लिए मेरे को पीवाईक्यू देखने पड़ेंगे, एलिमिनेशन टेक्निक वगैरह देखनी पड़ेगी. ठीक है, पीवाईक्यूज को आपको समझना पड़ेगा, पीवाईक्यूज को आप बनना पड़ेगा. यू जस्ट बिकम द पीवाईक्यू, जस्ट डोंट सॉल्व देम, जस्ट डोंट ट्राई टू रट्टाफाई दोस क्वेश्चंस, जस्ट डू इट वेरी स्मार्टली. व्हाट आई मीन टू से इज, ठीक है, आई प्रायोरिटाइज स्टार्टिंग मोर ओवर करंट अफेयर्स. आई अंडरस्टूड द पर्पज ऑफ मॉक टेस्ट. बिल्ड योर ओन स्ट्रेटेजी. ठीक है, आई बिल्ड माई ओन स्ट्रेटेजी कि आई विल डू 95 क्वेश्चंस अगर थोड़ा मध्यम स्तर पे पेपर की टफनेस है तो. ठीक है, एंड वन थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन इज सीसैट. प्लीज डू योर सीसैट वेरी वेल. Talking about CSAT, I did my comprehension very well. I did last approximately 150 to 200 passages, and in the final exam also, when I attempted 27 passages, I got approximately 21 or 22 right. So that was my strategy for CSAT also. So the final words कि स्टडी लेस एंड रिवाइज मोर. प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड कि स्टडी लेस का मतलब ये नहीं कि आप 5-6 घंटा पढ़ो दिन में. मेरा मतलब ये है कि डू नॉट मल्टीप्लाई योर सोर्सेस. ठीक है, आप वही चीजों को बार बार पढ़ो. दैट्स व्हाट आई मीन बाय सेइंग दैट स्टडी लेस एंड रिवाइज मोर. ठीक है, सो एंड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द 24th में. प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द डी डे एंड नॉट फॉर एनी मॉक टेस्ट. ठीक है, मॉक टेस्ट में यू आर अलाउड टू डू एज मेनी मिस्टेक्स यू कैन. I was the person who used to do blunders in mock. Even in my sixth attempt also, I got 51 in Abhyas. That's what I told you earlier also. So be the person who is ready to do all the mistakes in the mock test and just prepare yourself for the D-Day, for the 24th में. And believe me, जो आपकी तैयारी है वो 50%, जो पूरे जो strategy मैंने बताई है, that is just 50%. ठीक है, if you are not in your good senses, ठीक है, if you are not in a very good mood, and if you are not very optimistic about the day on 24th of May, then this is the 50%. आप वो 2 घंटे में अगर अपना फुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, then you are going to shatter in this examination. ठीक है, वो पेपर आपका नहीं निकलेगा. And this has happened me in my second attempt. मैं बहुत पढ़ के गया था, and on the day of examination I couldn't perform very well because I was not in a good mental state and the exam went very bad. ठीक है, so these are my final words. So that's it from my side. This was a overview of my strategy for prelims. I'll be delving more into more. I will delving into more details later on. So thank you and have a good day.